اب میں چاہتا ہوں کہ آغاز ہو جائے، کیونکہ میں تو اسی طرح کی بے ترتیب گفتگو کرتا رہوں گا. جتنی موٹی ان کی کتاب ہے اس کو ایک دن میں 2 دن میں پڑھنا آسان نہیں ہے، تبصرہ اور بھی مشکل کام ہے. تو جو لوگ باقاعدہ مبصر ہیں، محقق ہیں، مدبر ہیں، لکھتے پڑھنا ہی جن کا مشن ہے، مقصد ہے، ان میں سے ایک کو میں دعوت دیتا ہوں. اور شفیق الزما صاحب. خیر، شکریہ آپ کا. کہ وہ مذہب و کوئی ہم ایک ہیں، سب کو یہی بتانا ہے. مذہب و کوئی ہم ایک ہیں، سب کو یہی بتانا ہے. ہر ایک بگڑے کو اب منانا ہے. قلم اٹھاؤ کہ بھارت کو بچانا ہے. قلم اٹھاؤ کہ بھارت کو بچانا ہے. یعنی جو ہمارے مرکزی کردار ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، ان کے بارے میں یہی بتا دوں آپ کی کہ یہ کتابیں جو ان کی آئی ہیں 4 کتابیں، اردو صحافت کا آغاز و ارتقاء جس کا ابھی اجرا ہونا ہے، امیر خسرو تصوف شخصیت اور شاعری یہ کتاب آ چکی ہے. ارشاد احمد صاحب کا تعلیموں سے استقبال ہو، وہ تشریف لائیں اور آج کا جو موضوع ہے اس پہ گفتگو کریں. بہت بہت شکریہ. انہوں نے قلم اٹھایا اور اس کو ایک نیا موڑ دیا، اور انہوں نے یہ کتاب جو آپ کے سامنے آ جائی ہے یہ لکھی، اور اس کے علاوہ 4 کتابیں اور انہوں نے لکھی کر رہے ہیں. اردو کے لیے بہت بڑا کام یہ کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ قابل مبارکباد ہے. میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. امیر حمزہ صاحب بھی اس سے وابستہ رہے، تو وہ تشریف لائیں. میں آپ کو ذہن دیتا ہوں، مائک پہ آئیے اور آج کا جو موضوع ہے اس پہ گفتگو کیجیے. اور جو کتاب جس پہ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اس میں بھی ان کا مضمون باقاعدہ موجود ہے. کون صحت میں سچوں کی گواہی دے گا، ہاتھ پھیلاؤ تو سورج بھی سیاہ دے گا. غفران نسیم صاحب کو، غفران نسیم صاحب کا تعلق لکھنؤ سے ہے. انہوں نے لکھنؤ کی تحریکات میں حصہ لیا ہے، دیکھا ہے لوگوں کی سرگرمی کو بھی دیکھا ہے، اور کس طرح صحافت و ادب میں کام ہو رہا ہے، کس طرح کا ہونا چاہیے، اس پر بھی ان کی نظر ہے. روزنامہ راشٹری سہارا سے وابستہ ہیں اور اس سے زیادہ وابستگی اردو والوں سے ہے. وہ تشریف لائیں جو آج کا موضوع ہے اس کا حق ادا کریں. بہت بہت شکریہ رضوان فاروقی صاحب. صدر محترم، معزز خاتون حضرات، زبان اور زبان میں ادب اور ادب کا سب سے اہم اگر شعبہ دیکھا جائے تو وہ صحافت ہے. ادب کا جو گوشہ ہے وہ کچھ محدود اور مخصوص حصے تک ہوتا ہے، لیکن صحافت کے ذریعے سے جو باتیں منظر عام پر آتی ہیں وہ سماج کے ہر اس طبقے تک پہنچتی ہے جو اپنے آپ کو سماج کا حصہ سمجھتا ہے. ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے یقینی طور پر ہندوستان میں اردو صحافت کی تاریخ کو مرتب کرنے کا جو بہترین کام انجام دیا ہے، چند سطروں میں اگر اس پر روشنی ڈالی جائے تو ہندوستان کے پہلے اخبار جامع جہاں سے لے کر کے اور ہندوستان کے سب سے مشہور اخبار جس نے ایک تاریخ رقم کی اردو صحافت میں، اور ایک ہی وقت میں ایک ساتھ 10 شہروں سے اردو کا پہلا شائع ہونے والا اخبار راشٹری سہارا تک کی تاریخ کو مرتب کیا. اور نہ صرف تاریخ کو مرتب کیا بلکہ جب میں نے ان کی اس کتاب کی کچھ گردانی کی تو جس موضوع پر انہوں نے قلم چلایا اس کی وجہ تصویرہ بیان کرتے ہوئے تاریخ، جغرافیہ، تمام اور دوسرے ضمنی پہلوؤں پر اس قدر تفصیل سے قلم چلایا کہ ایک ہی وقت میں تاریخ اردو صحافت کے ارتقاء کا مطالعہ کرنے والے قارئین کے لیے ایک ہی وقت میں کئی موضوعات کا علم ہو جائے گا. اس صحافت کا جو نقطہ عروج ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان تمام ضمنی نکات کو بھی سمجھنا ہوگا جو ذاکر صاحب نے اپنی کتاب میں بہت خوبصورتی سے پیش کیے ہیں. میں اپنی بات کو یہیں سے مکمل کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. جناب قائد حسین کوثر صاحب مائک پر. سب سے پہلے تو رضوان صاحب کا شکریہ، جناب صدر صاحب اور معزز حاضرین. میں ایک بات آج تک سمجھ نہیں پایا کہ ٹرمینالوجی جو اردو کی ہے وہ بناتے وقت جو پرابلم آتی ہے وہ کیسے کیسے، مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ پرون ایریا یا
इस तरह के 50 मतलब लफ्ज हैं, इनको जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका कोई उनके पास वो नहीं है। वली साहब आपको जिंदा रहे, शुक्रिया रिजवान साहब। निहायत अदब और एहतराम के साथ मैं अलवी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि आज मुझे पहली मरतबा उनके सामने बोलने का मौका मिला। रज़ाक रिजवी साहब, संजय मिश्रा शौक साहब, अकबर अली साहब और साहिब किताब और तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अभी इस किताब के मशमूलात हमने देखे, उसमें शायद सहाफती ज़बान का कोई बाब शामिल नहीं है, हो सकता है हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा। और अभी कौसर ने जो बात कही वो ज़बान की है, मामला ज़बान का है। देखिए, एक अखबार जो होता है उसमें कागज होता है, उस पर स्याही होती है, फोटो होते हैं और तमाम चीजें होती हैं, तब वही अखबार बनता है जिसे आप सहाफत कहते हैं। अखबार पढ़ते हैं, आपको लगता है कि आप खबरें पढ़ रहे हैं। इसी तरह से आप टीवी पे देखिए, एंकर होती है या होता है, तस्वीरें आती हैं, रंग होते हैं, ज़बान होती है, तमाम चीजें होती हैं उसमें, तब वो खबरें आप तक पहुंचती है। एक रेडियो होता है, उसमें कागज भी नहीं होता, तस्वीरें भी नहीं होती हैं, कोई फोटो भी नहीं होता, सिर्फ आवाज होती है। उसी आवाज का सहर होता है, उसी आवाज का जादू होता है। जो कुछ भी होता है आवाज होती है, उसी से आप सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आवाज क्या है? आवाज ज़बान है। तो सहाफत जो है वो ज़बान के बगैर नहीं मुमकिन है। ज़बान जो आप देखते हैं ना, ज़बान का मामला क्या है। तो ज़बान पे अगर काम नहीं होता है किसी भी किताब में या सहाफत, ज़बान के बगैर उसका जिक्र मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इसमें उन्होंने जाकिर साहब ने बड़ी ही मेहनत से, बहुत मेहनत की। ऐसी किताबें आसानी से मन से शहूर पे नहीं आती। और इस वक्त जो सोशल मीडिया है, पुराने किताबों में आपको नहीं मिलेगा कि व्हाट्सएप क्या है, ट्विटर क्या है, ये तमाम चीजें इस किताब में मौजूद है। तो सहाफत जो अपडेट सहाफत है, आज की जो सहाफत है जो अपने जमाने से आंखें मिला के देख रही है, उर्दू सहाफत से मेरा खास मकसद है कि उस सहाफत को अगर देखना हो तो जाकिर साहब की इस किताब को पढ़िएगा, तो अंदाजा होगा कि आज हमारी उर्दू सहाफत कहाँ पर है। इस एतबार से जब जब रज़ाक हुसैन साहब का जिक्र आएगा, नए दौर का जिक्र होगा। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ऐसे सहाफ़ी इन्होंने इतनी बड़ी किताब, इसको मैंने बहुत बड़ा काम कह रहा हूँ क्योंकि मैंने वो किताब इन्होंने भेजी थी। तो जहानुमा से लेके और आज तक जितने भी हालात हैं और जितने भी अखबारात हैं और कैसे कैसे हालात जो गुजरे हैं नशीब व फराज को देते हुए, इन्होंने सब कुछ उसमें बयान किया। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो सियासी अखबारात हैं, वो चाहे रोजनामा हो या हफ्तरोजा हो या जो भी हो, साथ ही साथ इन्होंने जो रसायन हैं, अदबी रसायन हैं, उनका भी इन्होंने बहुत तफसीली उसका जायजा लिया है। और मुझे बेहद खुशी है और इंशाल्लाह जल्द ही मैं चाह रहा हूँ कि इसका हिंदी एडिशन आए और आप यहीं आके उसका भी इजरा करें। समझना, ये मेरी ख्वाहिशात है। सहाफत एक बहुत बड़ा मौजूद है और इस पर मुस्तकिल गुफ्तगू होती रहेगी, यही नशिस्तें भी होती रहेंगी, काम भी होता रहेगा, किताबें भी लिखी जाएंगी, किताब से भी लिखे जाएंगे और लोग बोलते रहेंगे, अपने अपने नजरिए भी पेश करते रहेंगे। बहरहाल किताब के उन्वान से इस बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किताब जो है सहाफत की तारीख पर मबनी है, उसकी तारीख की तदवीन की गई है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से तदवीन की। चूंकि मैं उनके मदानी नादौर में अक्सर पढ़ता रहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत लिखने वाले, बहुत अच्छा लिखने वाले। जो आप देख के सपने खरीद आया हो, अगर वो सुनना भी चाहे तो कैसे सोएगा। हमारा मरकजी किरदार जाकिर हुसैन साहब हैं, तो दुनिया के ऊपर फोकस है, मैं उन्हीं को रख रहा हूँ। मुताल्लिक़ किताब के मुताल्लिक़ जो हम लोगों को बताना चाहिए वो भी आप बता दीजिए और ये बताइए कि महफिल ठीक ठाक है कि नहीं है। तो इस तरह की एक किताब बन गई। इरशाद कामिल साहब दो जिल्दों करते रहे, लेकिन वो 2 जिल्दों लायक थी नहीं। स्ट्रक्चर उसका ऐसा था कि 2 जिल्द में नहीं हो पा रहा था और जबान और तकनीक को तो हमने छुआ ही नहीं। बहुत काबिल लोग उस पर काम करें, हम बहुत ज्यादा जबान के माहिर भी नहीं है। तस्बीह और इस्तारे का तो इस्तेमाल मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ अपनी नस्र में, क्योंकि मुझे आती ही नहीं है तस्बीह और इस्तारा।
मेरी जो कोताहियां होंगी आप माफ करेंगे, अच्छाइयां होंगी उसकी तारीफ करेंगे। वैसे मासूम मुरादाबादी और साहित्य देखी और बहुत सारे लोगों ने इतनी तारीफें कर दी कि मेरा गला रुक गया, और आप तमाम हजरात ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की है। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। उर्दू अदब में खुर्शीद की हैसियत रखने वाले मुमताज सहाफी अदीब निगार मोहतरम अहमद इब्राहिम मलवी आपके रूबरू हैं। अब वो आग बरसाएंगे या फूल, या आप अपना मुकद्दर तय कर दीजिए। सहाफत का मौजूद है मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प और बहुत जरूरी है। मैंने आपकी किताब पढ़ी, मैं किताब पढ़ता हूँ तो बहुत सी चीजें ऐसी जो लोग बोल सकता था, लेकिन एक बात आप बता दी, लोग कहते सच बोल गए, सच सुनना नहीं चाहते। आज की बैठ में मैं कहूंगा कि किताब तो ऐसी मैं 10 घंटे बोल सकता हूँ इसमें, और सामने किताब रख के बात करूँ, आप ये आपने क्या लिखा है, आप भी कह रहे थे, बता सकते हैं ये आपने लिखा है, ये गलत है, साफ साफ अपनी मंदिर। लेकिन आज मेरा मौजूद दूसरा है। सवाल ये कि हम कब तक माजी की दास्तान को दोहराते रहेंगे? हाल क्यों देख रहे हैं आपका हाल क्या है? आज आपकी कोई इज्जत है, कोई तकलीफ है, आप अखबार को लिखता है, आपका अखबार को चलता है, ईमानदारी से बताइए। हम उर्दू वाले हैं, कोई दूसरा का है तो हम बुरा मान लेंगे। वजह ये है आज उन लोगों के हाथों में चल गई जिनका पैसा तो है, तमीज तहजीब है। जनाब सलीम अहमद साहब आपको रूबरू। इस मेयारी किताब के लिए जो निहायत मेयारी भी है, सेहतमंद भी है और फरबा भी है, इस किताब के लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और मौजूद सभी लोगों का मजमूई तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।